Hello guys, I hope I'm audible. We are meeting after a long time indeed. Chalo. So let's continue our discussion which we were doing on Maharashtra history. I have taken the feedback from you guys regarding the medium and any problems if you guys face. So some of you guys have said that there is a problem related to voice. Okay, so I have started you started to use this particular microphone, okay, or you can say this headphones which is having the facility of microphone, and I hope this problem of voice is solved as of now. If you guys still face this particular problem, then let me know. Okay, we'll see something else for that. Okay, the second thing what you guys have suggested me was in the context of the medium or for the language which we are using. Okay, up till now we have done, I guess, near to 52 lectures. Okay, and these lectures were in English. Majorly the language was English. Okay, so most of you guys have recommended that we should be moving in English. Okay, what is English? You know this particular thing. Okay, not to discuss about that. But yes, so we'll go with English for the forward lectures or next lecture. इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा English and Hindi का combination use करने की कोशिश करेंगे. Okay, because that would get a greater connect with you guys. Okay, so let's start with the discussion. The remaining part of Maharashtra history. Okay, so up till now, what we have seen the freedom or independence of India. With that, independence of Maharashtra. Okay, independence of Maharashtra, and with this particular topic, after the completion of this particular topic, okay, national movements and all, then we have moved towards the next part. What was it? It was in the context of various movements. Okay, reform movements. You can say labor reform movements, workers reform movements, social reform movements, etc. Okay, tribal reform movements. We have seen all these reform movements, the person associated with them. Okay, these questions are generally asked in your means examination. Okay, these points are generally highlighted in means. The probability of questions asked or probability of question being asked on this part, जब तक हमने देखा था, okay, यहाँ की probability pre में तो कम ही, okay, you'll get very less questions in the pre, but there is too much of scope in means because in means they go in details. Okay, तो इन सब part का ज़्यादा application कहाँ पे होगा? Means में. Okay, so we have seen all this part. Today, what we are going to do? Okay, today we are going to see the part. From today onwards, we are going to see the part which is only focused on MPSC means. Combined के means में ये part नहीं आएगा. This part is restricted or this part is applicable only for state services or Rajya Seva means. Okay, what is this part in the context of? This part is in the context of post independence Maharashtra. Okay, this part is in the context of post independence Maharashtra, or in simple terms you can say Maharashtra after independence. What was the scene of Maharashtra? How the state called Maharashtra was formed, the journey towards the formation of Maharashtra we are going to see in this particular part. Okay, post independence Maharashtra. The next topic or last second topic you can say, I guess it is the fourth uh, topic or fourth lesson sub chapter in your book. So post independence Maharashtra. In this particular topic of post independence Maharashtra, we are going to see two parts. Or this whole topic is divided into two basic parts. दो parts में इसका division किया गया है. The first part talks about संयुक्त महाराष्ट्र movement. That is the formation of a state called as Maharashtra with Mumbai as its capital. ओके, सो ये जो प्रोसेस था वो इजी नहीं था. इसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए. ओके, एंड वी नीड टू सी ऑल दोस मूवमेंट्स ओवर हियर. So the first part would be in the context of संयुक्त महाराष्ट्र movement. Okay, इसी पे हमारे nearly 4 to 5 lectures based होंगे. This particular part, संयुक्त महाराष्ट्र movement. And after this particular part, second part is in the context of Marathwada liberation movement or freedom movement. Marathi we call it as Marathwada Mukti Sangram. Okay, that is Marathwada. The part of Marathwada today which we have in Maharashtra was initially किसके अंडर आता था? ये निजाम, निजाम प्रोविंस के अंडर आता था ये part. So how we have taken this part from Nizam and augmented it into Maharashtra. ये स्टोरी हम लोग कहाँ पे देखेंगे? सेकेंड पार्ट, दैट इज मराठवाड़ा फ्रीडम मूवमेंट.
Okay, so this topic would be divided into these two parts. Now we'll be starting with the first part, that is संयुक्त महाराष्ट्र में. ठीक है, बेसिक आइडिया तो हो गया होगा टॉपिक का कि क्या होगा ये. ओके, so we'll start discussion on this particular part. So the first part what we are going to discuss, पहला part जो होगा हमारा, that would be in the context of संयुक्त महाराष्ट्र. Now talking about some historic basis. Okay, महाराष्ट्र का पहले से क्या रहा है. Okay, we have a glorious historic past. How can I say this particular thing? Because महाराष्ट्र का आइडेंटिटी कहाँ से आता है. ओके, और फ्रॉम वेयर वी गेट टू नो अबाउट महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र की बेसिक इंट्रोडक्शन देने का श्रेय, या फिर यू कैन से ये क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन किसको आता है महाराष्ट्र को एज अ स्टेट या फिर एज एंटिटी दिखाने का. तो अ पर्सन हु वाज नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज. ओके, ही वाज द वन who gave Maharashtra its own identity. Okay, so if you want to learn about how exactly he formed or he carved out Maharashtra, you can read his biography. That is Shriman Yogi. One of the best book. It will give you great lessons in your life. But again, it is not the part of our syllabus, so I will not discuss about it over here. Okay, Chhatrapati Shivaji Maharaj. What he did, he laid the foundation of Swaraj. Okay, इसी को हम लोग बोलते हैं foundation step for the formation of Maharashtra. Okay, this is supposed to be the foundation step. Okay, Swaraj, what he laid हो रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था. Okay, he aware the people about few points. Okay, he aware the people that he should possess everyone, the society should possess few attributes with them. Which are those attributes? Those attributes were, first thing, Swaraj, that is self rule. You know this. Okay, second attribute which he generally what you can say imagine that the people should possess was in the context of swadharma, or to have your own dharma. Okay, swadharma. Then he also focused on a thing called as swabhasha, language, self-oriented language. And last thing was swa sanskriti. Okay, so what Shivaji Maharaj did, Shivaji Maharaj obeyed the people. Okay, उन्होंने क्या कहा था? He said that what we should possess or what we should have with ourselves, we should have four basic attributes, which were those. First one was Swaraj, Swadharma, Swabhasha, and Swa Sanskriti. Okay, this empire which was led by Chhatrapati Shivaji Maharaj, इन्होंने जो empire ले किया था या जिसका foundation रखा था, ये empire कब तक चलती है? ये empire चलती है till 1818. ओके, कब तक चलती है? ये सब चलता है टिल 1818. बट इस टाइम पे कौन लीड कर रहा है मराठा एम्पायर को? दिस मराठा एम्पायर इज लेड बाय पेशवास. कौन लीड कर रहा है इनको? पेशवास लीड कर रहे हैं. ओके, पेशवास आर लीडिंग दिस पर्टिकुलर मराठा एम्पायर एज ऑफ नाउ. ओके, एंड 1818 में क्या होता है? A benchmark event happens. Okay, what happens over here? There is the third Anglo-Maratha war. Okay, what happens in this particular war? In this particular war, Maratha Empire ends and the formation of Bombay presidency takes place. What do you mean by this particular thing? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन रही है, मतलब वो क्या रहा है? सिंपल थिंग कि महाराष्ट्र जो था या फिर ये जो लैंड था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जहाँ पे उन्होंने स्वराज एस्टेब्लिश किया था, ये कहाँ पे जा रहा है? इट इज गोइंग अंडर, सीधी सीधी बात है, ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स आर ओवरटेकिंग महाराष्ट्र ओवर हियर. ओके, अब जब ब्रिटिशर्स ने इसको ओवरटेक किया, व्हाट दे डिड? ओके, ब्रिटिशर्स विद देम, और ब्रिटिशर्स ब्रॉट विद देम some social and educational reforms. क्या करते हैं ब्रिटिशर्स? अपने साथ कुछ सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आते हैं. ओके, और इसी के साथ साथ क्या होता है? एज ऑफ रेनेसांस. एज ऑफ रेनेसांस क्या होता है? इसी के साथ एज ऑफ रेनेसांस स्टार्ट हो जाता है इंडिया में एज वेल एज इन महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र और टू बी स्पेसिफिक बॉम्बे एट दैट टाइम. अभी तक महाराष्ट्र बना नहीं है. महाराष्ट्र कैसे बना है वही स्टोरी हम लोग देख रहे हैं. इनिशियली इट वाज बॉम्बे प्रोविंस. ओके, तो बॉम्बे में Bombay and Bengal are supposed to be two intellectual provinces where you can say
बहुत सारे इंटेलिजेंट पीपल यहाँ पे रहते थे, वो लोग डिस्कशंस करते थे, दे यूज्ड टू डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड सी हाउ दे आर एप्लीकेबल टू आवर सॉइल, और हमारे लोगों के लिए कैसे एप्लीकेबल है, अच्छा है, ये देखने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। ओके, सो कुछ एजुकेशन रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं, और इसी के साथ साथ एक अवेकनिंग चालू होती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेनेसां। ओके, अब सोशल अवेकनिंग चालू हो रही है, जिसको हम लोग रेनेसां के नाम से पहचान। ओके, तो इसी चीजों की वजह से बाद में क्या होता है, इंडिया में एक फीलिंग आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, we have seen everything, okay, nationalism. Okay, nationalism starts to erupt, or nationalism starts to grow in the minds of the people, okay, and then what happens due to this particular nationalism, we'll get or we'll move towards freedom और इंडिपेंडेंस, जो हमको मिलता है कब, 1947। ओके, इंडिया अटेन्स इंडिपेंडेंस इन 1947। अब क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, ओके, वंस वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस, नाउ कुछ नए इश्यूज आने चालू हो जाते हैं। What are these नए issues? Okay, these नए issues are what you can simply define about a separate state on the basis of language, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाना, नया चैलेंज लोगों के सामने आता था। ओके, अभी जब क्या ये जो चैलेंज था पहली बार यहाँ पे आया था, नो। ओके, ये आइडिया पहली बार के इंडिपेंडेंस के बाद ही लोगों के मन में आया था, नहीं। ओके, तो फर्स्ट टाइम ये आइडिया कब आता है, फर्स्ट टाइम ये आइडिया आता है नियर टू 1910, हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी। ओके, और स्पेशली इस आइडिया को नेशनल लेवल पे कौन लेके जाता है, तिलक। तिलक बोलता है गवर्नमेंट को जाके फेस टू फेस कि यू शुड फॉर्म लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ओके, तो 1910 में ये इशू आना चालू हो जाता है, विल सी अबाउट दैट थिंग लेटर, बाद में देखेंगे आराम से इसके बारे में। ओके, तो सेपरेट स्टेट का डिमांड, और सेपरेट स्टेट का डिमांड किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज चालू हो जाता है। ओके, और महाराष्ट्र में जो मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। ओके, वी कॉल दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एज संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। और ये मूवमेंट स्टार्ट कब से होता है, एक्चुअली इसका पेस कब से मिलता है, इन द ईयर 1946। फ्रॉम 1946 दिस मूवमेंट स्टार्ट्स टू ग्रो इन महाराष्ट्र। ओके, और फाइनली ये मूवमेंट खत्म कब होता है, दिस मूवमेंट एंड्स ऑन 1st of May 1960, जब ऑफिशियली वी हैव स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड दैट्स व्हाई दिस डे इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज महाराष्ट्र डे। तो ये जर्नी 1946 से 1960 की जो जर्नी है, ये हम लोग अभी देखने हैं इन संयुक्त महाराष्ट्र। ओके, आई होप द आइडिया इज क्लियर, अब तक मैंने क्या बोला आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से तो इस टाइम तक ये तो हम लोग देखने वाले, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे हम लोग। हमारा काम कहाँ से चालू होगा, 46। ओके, ये टॉपिक में हम लोग किधर से हमारी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और हमारा सीखना चालू करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम 1946 एंड we'll be moving towards the 1st of May 1960 when officially the state of Maharashtra was formed. Okay, so this would be the part that we'll be discussing. Okay, अब एक एक करके चीजों को आगे आराम से देखने की कोशिश करते हैं। So first thing where we'll start the discussion on संयुक्त महाराष्ट्र movement is in the context of his historical background. Okay, इसके historical background को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। Okay, तो क्या हो गया था, once we have entered the 20th century, यानी कि क्या 1910, मैंने तभी बताया था आपको कि 1910 से ही लोगों के मन में एक फीलिंग आने चालू हो गई थी। What was that particular feeling? That there should be a state that is called Maharashtra for the Marathi speaking. ओके, 1910 के आसपास ही बोल सकते हो कि एक चीज आती है लोगों के मन में, क्या, कि हम सब लोग मराठी बोलने वाले लोग हैं, एंड व्हाट वी शुड हैव फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल, फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल वी शुड हैव अ स्टेट कॉल्ड एज महाराष्ट्र। ये वाली फीलिंग आनी चल रही थी कब, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इटसेल्फ। ओके, अभी इस चीज को, इस सपने को सच करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है, ओके, हु प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दिस ड्रीम कम ट्रू। Okay, there's a thing, or there was a सम्मेलन, there was an association called as Marathi साहित्य सम्मेलन। मराठी साहित्य सम्मेलन, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पॉइंट पॉइंट पे आने के बाद पुश करने का, जब मूवमेंट फेड डाउन हो रही थी तो उसको पुश करने का काम, इस मूवमेंट को इग्नाइट करने का काम, इस मूवमेंट को आगे तक लेके जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है, मराठी साहित्य सम्मेलन। इसका कंट्रीब्यूशन कोई भुला नहीं सकता।
Okay, it gave a noteworthy contribution in this particular moment. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी थी मराठा साहित्य संघ इस पर्टिकुलर मोमेंट. ओके, अभी इन सबको सम अप करते हुए एक पर्सन थे who was called as first chief minister of Maharashtra state. Okay, what was his name? यशवंतराव चव्हाण. Okay, he has written a book. इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था ऋणानुबंध. Okay, he has written a book called as ऋणानुबंध. Okay, what he says in this particular thing कि ये जो मराठी people unite हुए थे, okay, Marathis, all the Marathi people were united. किसके वजह से? मराठी साहित्य सम्मेलन की वजह से. What is said? This particular people were united. Why? Because of मराठी साहित्य सम्मेलन. But exactly हुआ क्या था? तो इस पर्टिकुलर मराठी साहित्य सम्मेलन का 46 के टाइम की बात कर रहा हूं मैं. तो इस टाइम का जो प्रेसिडेंट था, there was a president of this particular हर बार जब भी सम्मेलन भरता था या एसोसिएशन बनता था तो क्या होता था, इसका एक प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किया जाता था. एंड ही यूज्ड टू टेल गिव मैसेजेस टू द पीपल. ओके, तो जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम के, जिनका नाम था चिंतामणि राव वैद्य. ओके, व्हाट वाज हिज नेम? चिंतामणि राव वैद्य. इन्होंने क्या किया था, एक प्रेसिडेंशियल स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने इस यूनिफिकेशन का जिक्र किया था. और ही हैज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट यूनाइटिंग मराठी स्पीकिंग पीपल टुगेदर. ओके, सो इस कॉन्फ्रेंस ने इसके बाद से क्या किया, इसी एजेंडा को कैरी फॉरवर्ड किया. ओके, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैरीड फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर एजेंडा. ओके, द अपकमिंग इयर्स और इन द फॉलोइंग इयर्स. ओके, तो यही सपना जो इनिशियली चिंतामणि राव वैद्य ने दिखाया था, बाद में क्या होता है, वेरी फेमस पर्सन सच एज एनसी केलकर, ओके, विठल वामन तामनकर. Names are important. Should remember this particular names. Okay, Vittal Vaman Tamankar. Then you can say Acharya Vinoba Bhave. Okay, Dhananjay Rao Gadgil, Prabodhankar Thackeray, G.T. Mudolkar, etc. बहुत सारे नाम, बट कुछ प्रोमिनेंट नेम्स है दैट यू नीड टू रिमेंबर और कीप इन योर माइंड. ओके, तो क्या करते थे, यही सपना ये सब लोग देख रहे थे. ओके, ये कब का टाइम चल रहा है, जब यूनिफिकेशन का बात चला था. ओके, 19 या 20th सेंचुरी के स्टार्ट की बात कर रहे हैं. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. कब? 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बात कर रहे हैं. ओके, ये सपना कब देखा था इन लोगों ने, इन सब लोगों ने सपना देखा था नियर टू 1910. ओके, ये सपना कब देखा था इन लोगों ने, नियर टू 1910. ओके, बाद में 1911 में क्या होता है, एनसी केलकर, व्हाट ही डज, ही राइट्स एन आर्टिकल इनटू न्यूज़पेपर इन केसरी. अभी केसरी नाम आ रहा है तो यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स हु स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर केसरी. किसने स्टार्ट किया था? ओके, जस्ट नीड टू कमेंट इट. इन 1911 क्या होता है, एनसी केलकर केसरी में लिखता है, व्हाट ही राइट्स, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखता है जिसका नाम है लैंग्वेज एंड नेशनलिटी. ओके, तो क्या करता है, एक आर्टिकल लिख रहा है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, लैंग्वेज एंड नेशनलिटी. और इस आर्टिकल में बोलता क्या है, ही सेज दैट ऑल मराठी पीपल, व्हाट ही सेज कि ऑल मराठी शुड बी ब्रॉट अंडर वन रूल. जो भी मराठी पीपल है, मराठी स्पीकिंग पीपल है, दे ऑल शुड बी ब्रॉट अंडर वन रूल. हर किसी को एक रूल के अंदर लाना है, एवरीवन शुड बी ब्रॉट अंडर वन रूल. ओके, तो इसी चीज को आगे लेके जाते हुए तिलक क्या करता है, ओके, 1915 में गवर्नमेंट के सामने एक अल्टीमेटम देता है, और यू कैन से ही पुट्स हिज डिमांड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. so what we should do, we should reorganize or reconstruct the state based on language. समझ में आ रहा है? I just repeat the story again. थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहाँ पे. सी, व्हाट हैपेंस इज 1910 से या फिर 20th सेंचुरी के स्टार्ट से लोग क्या करते हैं, इस सपने को देखने की कोशिश करते हैं कि वी शुड हैव महाराष्ट्र. ओके, अभी महाराष्ट्र फॉर मराठी पीपल. अब ये सपना दिखाने की शुरुआत कहाँ से होती है, फिर इस सपने को
के सीड्स कौन बो करता है, दैट इज मराठी साहित्य सम्मेलन. ओके, इट हैज गिवन अ नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन इन दिस. यशवंतराव चव्हाण जो कि फर्स्ट सीएम थे महाराष्ट्र के, व्हाट ही सेज इन हिज बुक रणबंध, ही सेज मराठी पीपल का यूनिफिकेशन अगर हुआ है तो किसके वजह से हुआ है, मराठी साहित्य सम्मेलन के वजह से हुआ है. ओके, दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्लेड बाय मराठी साहित्य सम्मेलन. सो इन द प्रेसिडेंट्स स्पीच ऑफ मराठी साहित्य सम्मेलन, चिंतामणि राव वैद्य ये बंदा था, इसने अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में क्या कहा था, यूनिफिकेशन की बात रखी थी सामने. और जब उन्होंने इस यूनिफिकेशन की बात रखी थी, तो यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं आप लोगों को, दिस ऑल पीपल ड्रीम्ड अबाउट हैविंग महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल. ओके, तो इन्हीं सब ड्रीम्स को सब दुनिया के सामने लाने की कोशिश सबसे पहले किसने की थी, वेंसी किलकर. इन 1911 केसरी पेपर में उन्होंने क्या किया था, एक आर्टिकल लिखा था. व्हाट वाज दिस आर्टिकल, लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्टिकल, लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी. और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उन्होंने बोला था कि ऑल मराठी पीपल शुड बी ब्रॉट अंडर वन. ओके, और इसी डिमांड को आगे तिलक गवर्नमेंट तक पहुंचाता है. व्हाट ही सेज दैट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स शुड बी डन बेस्ड ऑन लैंग्वेज. ओके, ये सब चीजें यहाँ तक हो रही है. ओके, पर जब ये सब चीजें सामने आती है तो लोगों को क्या लगता है कि एज ऑफ नाउ 1915 की बात चल रही है, एज ऑफ नाउ क्या रिकंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली नहीं. दिस रिकंस्ट्रक्शन नॉट इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, as of now the main focus should be focused, or the main focus of the people should be इंडिपेंडेंस ऑफ नेशन. हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए अब के लिए, तो भी हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ नेशन. इसीलिए क्या किया जाता है, इस डिमांड को, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, इस डिमांड को क्या किया जाता है, इट इज केप्ट साइड, इसको बाजू में रख दिया जाता है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता. बोलते हैं चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नेशन के इंडिपेंडेंस की तरफ फोकस करेंगे. ओके, एंड वंस वी गॉट द इंडिपेंडेंस, अब क्या हो रहा है, ये डिमांड जल्दी से स्टार्ट हो रही है क्या, जैसे इंडिपेंडेंस मिल रहा है महाराष्ट्र की डिमांड स्टार्ट हो रही है क्या, नहीं. ओके, सबसे पहले इस डिमांड लिंग्विस्टिक स्टेट्स या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिमांड को स्टार्ट कौन कर रहा है. ओके, तो बेसिकली आप देखोगे कर्नाटका. ओके, जनरली कर्नाटका एंड आंध्र, कर्नाटका और आंध्र में ये मूवमेंट चालू हो रही है सबसे पहले. ओके, कौन सी मूवमेंट, लैंग्वेज, वन लैंग्वेज वन स्टेट, फिर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाना, ये मूवमेंट सबसे पहले कहाँ पे चालू हो रही है, आंध्र कर्नाटक. ओके, अभी जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, जो भी कर रहा है, ओके, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, एक बंदा जिसका नाम है एन बी पटवर्धन. ओके, जब ये मूवमेंट कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लिए स्टार्ट हो रही है, तब एन बी पटवर्धन क्या करता है, ये सामने आता है, पीपल के लोगों के सामने आता है, और वो क्या बोलता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. क्यों, क्योंकि कर्नाटका के लिए और आंध्र के लिए लोग एफर्ट्स ले रहे हैं, बट नो वन इज टेकिंग एनी एफर्ट्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ महाराष्ट्र. ही फील्स सॉरी फॉर दिस. पब्लिक में आके वो क्या बोलता है, वेरी सॉरी कि महाराष्ट्र की यूनिफिकेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहा. ओके, तो इसने क्या किया था, इसी चीज के लिए एक 40 क्वेश्चन की क्वेश्चनरीज बनाई थी, एक सेट ऑफ 40 क्वेश्चंस बनाए थे, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स वो क्या कर रहा था, लीडर्स से ले रहा था, जो भी उस टाइम के लीडर्स थे, जो भी पार्लियामेंट में बैठे थे, जो भी लॉ मेकिंग चीजों में बैठे थे, उन सब लोगों से वो क्या कर रहा था, इस क्वेश्चन इसको भर के ले रहा था या फिल करके ले रहा था. एंड ही पब्लिश्ड इट इन हिज न्यूज़पेपर. क्या कर रहा है वो, ये क्वेश्चंस भर के ले रहा है इन लोगों से, और इन क्वेश्चंस को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहा है, ताकि लोगों को पता चले चीजें चल क्या रही है. ओके, क्यों, जस्ट टू बिल्ड अप द प्रेशर. क्यों कर रहा है सब, प्रेशर बिल्ट अप कर. ओके, एंड देन व्हाट हैपन, कुछ लोगों के थॉट्स, जैसे कि रामराव देशमुख, ओके, बैरिस्टर जयकर, ओके, रामराव देशमुख, बैरिस्टर जयकर, अनुसुईया, जस्ट अ मिनट, काले, ANUSUY, अनुसुईया काले, NC किलकर, TJ केदार. ओके, ये वाइस चांसलर थे नागपुर यूनिवर्सिटी के, TJ केदार, KEDAR, TJ केदार. TJ केदार कौन थे, वाइस चांसलर थे कहाँ के, नागपुर यूनिवर्सिटी के. नाम इंपॉर्टेंट है, जस्ट कीप अ नोट, जस्ट बी इन हैबिट ऑफ कीपिंग द नोट ऑफ द थिंग्स. ओके, तो वाइस चांसलर थे नागपुर
यूनिवर्सिटी के। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ओके, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये अपने डिमांड कर रहे हैं कि वी वांट अ सेपरेट प्रोविंस, ओके, व्हाट दे से वी वांट अ सेपरेट प्रोविंस, ओके। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, मराठी साहित्य सम्मेलन का रूल फिर से आता है, जस्ट अभी फिर से पिक्चर में कौन आ रहा है, मराठी साहित्य सम्मेलन, कौन फिर से पिक्चर में आ रहा है, मराठी साहित्य सम्मेलन। नाउ व्हाट मराठी साहित्य सम्मेलन इज डूइंग ओवर हियर, ओके, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन बन रहा है, क्या कि वी वांट अ सेपरेट स्टेट, ओके, हमको क्या चाहिए, एक स्टेट चाहिए, इसका नाम क्या होगा, महाराष्ट्र, ओके, व्हाट वी वांट अ स्टेट whose name should be Maharashtra, and what it should include, it should also include Varhad, ओके, वो क्या इंक्लूड करना चाहिए, बरहाट, और सेपरेट स्टेट होना चाहिए जिसका नाम होगा महाराष्ट्र, और जिसमें बरहाट, BARHAD, बरहाट, बरहाट भी इंक्लूड करना चाहिए, ओके। दिस वाज द थिंग व्हिच वाज प्रपोज्ड फर्स्ट टाइम इन द मराठा साहित्य सम्मेलन, बट वो क्या बोल रहे हैं, इमीडिएटली बनाना है क्या, नहीं, व्हेन वी नीड टू फॉर्म इट, वंस द रूल ऑफ निजाम एंड पोर्चुगीज ends, what we will do, we'll unite Marathwada, we'll unite Vidarbha, and then we'll form a state for Marathi speaking people, और इस स्टेट का नाम हमको क्या रखना है, महाराष्ट्र, okay, this thing was discussed, okay, then what happened finally, जो 1939 का मराठी साहित्य सम्मेलन है, ओके, द मराठा साहित्य सम्मेलन ऑफ 1939 कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है अहमदनगर, this साहित्य सम्मेलन occurs is taking place at अहमदनगर, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ओके, व्हाट इज दिस रेजोल्यूशन, वन स्टेट ऑफ मराठी, ओके, या फिर वन प्रोविंस ऑफ मराठी, ये वाला रेजोल्यूशन पास करते हैं यहाँ पे, ओके। सो क्या हो रहा है 1939 के मराठा साहित्य सम्मेलन में, जो कहाँ हो रहा है, जो हो रहा है अहमदनगर में, यहाँ पे आके सब लोग क्या कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, व्हाट इज दिस रेजोल्यूशन, वी विल फॉर्म, और वी वांट वन प्रोविंस फॉर हुम, फॉर मराठी, ये पर्टिकुलर चीज पास हो रही है, ओके। तो अब क्या हो रहा है, ऑन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट थिंग, दैट इज 24 मई 1940, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, 24 मई 1940 को ये लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और एक सभा बना रहे हैं, मार्क द डेट, ये डेट कंबाइन एग्जाम से बहुत बार पूछी गई है, 24 मई 1940 को क्या बन रहा है, एक चीज बन रही है, इसका नाम है संयुक्त महाराष्ट्र सभा, इसको मैं आगे SMS बोल के डिनोट करूँ, ओके, संयुक्त महाराष्ट्र सभा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 मई 1940 क्या बन रहा है, संयुक्त महाराष्ट्र सभा, ओके। और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हु आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, तो फर्स्ट वन वाज धनंजय राव गाडगिल, ओके, NV पटवर्धन, ओके, एंड श्री वाकनकर, ये लोग इससे एसोसिएटेड है, ओके। एंड व्हाट एसोसिएट तो बहुत लोग थे, व्हाई आई एम स्पेसिफिकली टेकिंग दीज नेम्स, दिस थ्री नेम्स, व्हाई, बिकॉज व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर अ मैप, इन्होंने महाराष्ट्र कैसा होगा, ओके, हाउ वुड बी द मैप ऑफ महाराष्ट्र, इसका एक आइडिया सबके सामने रखा, ओके। तो दे फर्स्ट पुट द मैप ऑफ महाराष्ट्र इन फ्रंट ऑफ साहित्य सम्मेलन, ओके। तो कौन कौन, धनंजय राव गाडगिल, NV पटवर्धन एंड श्री वाकनकर, ये तीनों ने मिलकर क्या किया था, महाराष्ट्र का एक मैप बनाया था और इसको सबके सामने रखा, ओके ना। अभी एक और पर्सन था, इसका नाम था लोक नायक बापूजी अने, okay, what is the name of this particular person, लोक नायक बापूजी अने, what he said, okay, इसने बोला था, इसने कॉन्सेप्ट दिया था इसका, महाविदर्भ का, ओके, he came up with the concept of महाविदर्भ, इसको महाविदर्भ चाहिए था, ओके। ये क्या बोलता था, what we should do, we should create two province with same language, ओके। क्या बोल रहा था ये, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग दो प्रोविंस बना सकते हैं एक ही लैंग्वेज के बेसिस पे, ओके।
अब जो भी इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे वो क्या समझते थे, किसी महाराष्ट्र के दो पार्ट्स है, एक वेस्टर्न महाराष्ट्र और ईस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र में आता है मुंबई, जो कि बहुत डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न महाराष्ट्र। तो वो लोग क्या समझते थे कि ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का पार्ट है, okay, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है ये क्या करेगा, ये डोमिनेट करेगा किसको, ईस्टर्न महाराष्ट्र को, और टू बी स्पेसिफिक किसको, विदर्भ को। और दैट्स व्हाई व्हाट वुड हैपन, विदर्भ वुड गेट अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसके वजह से क्या होगा, विदर्भ को सेकेंड ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा सोचा जा रहा है। ओके, लोकनायक बापूजी ने इस आइडियोलॉजी को लीड करने वाले फिगर थे। ओके, व्हाट इज ओपिनियन के दो लैंग्वेज, एक स्टेट दो लैंग्वेज से बनाओ, हो सकता है, ओके दैट इज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अगर एक ही महाराष्ट्र बन रहा है तो वहां पे क्या होगा, विदर्भ को हमेशा से सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिला जाएगा। दिस वाज हिज ओपिनियन। ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, व्हाट वाज द फिलोसॉफी बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र। फिलोसॉफी क्या थी महाराष्ट्र बनने के पीछे, या फिर संयुक्त महाराष्ट्र के पीछे, संयुक्त महाराष्ट्र के पीछे की फिलोसॉफी क्या थी। ओके, अभी देखो, कभी भी हमको कुछ मास मूवमेंट करनी है, ओके, इफ यू वांट अ मास, तो क्या लगता है, इस मास मूवमेंट के लिए कुछ तो भी कंस्ट्रक्शनल एंड सोशल रिफॉर्म लगते हैं। ओके, अगर वो मास मूवमेंट किसी भी कल्चरल और सोशल रिफॉर्म पे बेस्ड है, देन ओनली इट कुड लिव फॉर लॉन्ग, तभी वो लंबे समय तक चलेगी। अगर इसको कुछ बेस नहीं है, कंस्ट्रक्शन सोशल बेस नहीं है, कुछ अच्छा सोसाइटी में डेवलपमेंट वो नहीं करने वाली है, तो क्या होता है, कॉमन पीपल से उसका कनेक्ट नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी लिविंग फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सो किसी मूवमेंट को लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए क्या चाहिए, एक कंस्ट्रक्शनल और सोशल बेस चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर दिस पर्टिकुलर। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन सोशल बेस बनाने का काम किसने किया था, धनंजय राव गाडगिल के डी गाडगिल। इन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। ओके, इन्होंने क्या किया था, सबको क्लेरिफाई किया था कि वाई वी वांट महाराष्ट्र। ओके, और इन्होंने जो कहा था वो लोगों को लॉजिकली और फिलोसॉफिकली दोनों तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इन्होंने जो भी जस्टिफिकेशन दिया था कि वाई वी वांट महाराष्ट्र, ओके, ये सभी को जस्टिफाई कर रहा था। ओके, पहली चीज उन्होंने क्या बोली, क्यों महाराष्ट्र चाहिए, बिकॉज वी वांट टू शो आवर यूनिटी। सेकंड थिंग उन्होंने क्या बोला, कि वी ऑल शेयर अ कॉमन हिस्ट्री, वी ऑल हैव अ कॉमन लैंग्वेज, ओके, वी have all have a common religion tradition, we all have a common folk structure। ओके, इसी के साथ उन्होंने बोला था कि जो विलेज का स्ट्रक्चर है और जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, हम सब लोगों में कैसा है, कॉमन है। और ये कॉमन, और ये कॉमनैलिटी क्या करती है, हमें यूनिटी की तरफ प्रमोट करती है। दिस वाज द आंसर, या फिर ये तथ्य दिया गया था कि व्हाई वी शुड हैव वन थिंग। ओके, और ये दिखाता था कि ये फीलिंग इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है, यूनिटी को प्रमोट करती है, कि वी शुड हैव अ पर्टिकुलर टेरिटरी दैट इज महाराष्ट्र। हमारे खुद की टेरिटरी होनी चाहिए जो कि महाराष्ट्र के नाम से जानी जाएगी। ओके, अगेन यशवंत राव चौहान अपनी बुक में ऋणानुबंध, ओके, यशवंत राव चौहान अपनी बुक में फिर से क्या कहते हैं, बोलते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन गाडगिल ने दिया था ये बहुत ही अप्रिशिएबल, कि गाडगिल का जो एक्सप्लेनेशन था कि व्हाई वी वांट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, महाराष्ट्र क्यों चाहिए, ये बहुत ही क्लियर था और इसने लोगों को बहुत जल्दी कनेक्ट किया। अब गाडगिल ये क्यों कर रहा था, बिकॉज गाडगिल हैड वर्क इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, पहले से उसने काम किया था, एंड ही वाज वेरी क्लियर विथ हिज आइडिया ऑफ फेडरल यूनियन। फेडरल यूनियन कैसे डिवाइड होगी, फेडरल यूनियन की पावर्स कैसे आती है, फेडरेशन कैसे वर्क करता है, ये सब चीजों का उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया था। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र, इसीलिए उसको क्या चाहिए था, इस डिमांड को सपोर्ट करना चाहिए था संयुक्त महाराष्ट्र के मूल। आई होप यू गाइस आर गेटिंग द स्टोरी अप टिल नाउ। ओके, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बट फिलोसॉफी खत्म करके हम लोग रुक जाएंगे। ओके, नाउ दोज हु एडवोकेटेड, ओके, वन लैंग्वेज वन स्टेट, जो लोग भी इस चीज को, इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, वन लैंग्वेज वन स्टेट, ओके, ये लोग क्या बोलते थे,
कि ये स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट यू कैन से सिटीजन्स के स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन्स का अगर एक लैंग्वेज होगा विथ वन लैंग्वेज, क्या करेंगे ये, इट विल क्रिएट अ हेल्दी डेमोक्रेसी। इनका मानना था हेल्दी डेमोक्रेसी बनेगी। कैसे कि जो भी सिटीजन्स के थॉट्स है, जो भी सिटीजन्स की डिमांड्स है, जो भी इनके एडमिरेशन है, ये गवर्नमेंट तक बहुत इजीली पहुंचेंगे। ओके, इफ यू आर हैविंग वन लैंग्वेज। ओके, जो सपोर्टर्स थे इस आइडियोलॉजी के वो ये मानते थे। ओके, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो वन लैंग्वेज वन स्टेट को अपोज करते थे। ओके, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस चीज को नहीं मानते थे। ओके, तो व्हाट दे थॉट कि ये क्या करेगा, ये एनिमिटी बनाएगा। किसमें, दो अलग अलग स्टेट्स। लेट्स से ये है मराठी लैंग्वेज बना हुआ स्टेट, और ये है लेट्स से कन्नड़ा लैंग्वेज, कर्नाटका बन ही गया है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो व्हाट, ये जो अपोज करते थे इस आइडियोलॉजी को, ये लोग क्या समझते थे, अगर ऐसे दो मराठी स्पीकिंग और कन्नड़ा स्पीकिंग स्टेट बनते तो क्या होता है, इन दोनों में दुश्मनी पैदा हो जाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर अ फेडरल यूनियन, ऐसे वो बोलते थे। ओके, तो होता क्या है, ये चीज चलती है, डिस्कशन चलता है। पोटी श्रीरामुलु, आपको नाम पता होगा। ओके, तो उनका डेथ हो जाता है और उसके बाद से आंध्र बनना चालू होता है। बाद में गवर्नमेंट कुछ कमिटीज बनाती है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कमेटी बनाते हैं, और उस कमेटी, वो कमेटी क्या बोलती है कि हमें क्या करना है, रीऑर्गेनाइजेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज। जब ये वाली चीज सामने आती है तो सब मराठी स्पीकिंग पीपल खुश हो जाते हैं कि हमारा जो सपना था, जो हमने बहुत पहले देखा था, ओके, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल, ये अब सच होने वाला है, सबको ये लगता है। बट यही कमीशन बाद में क्या करती है, महाराष्ट्र के फॉर्मेशन के लिए डिनाई कर देती है। वो क्या कर रही है, महाराष्ट्र के फॉर्मेशन के, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पीपल के स्टेट के लिए वो डिनाई कर देती है। तो इनके जो सपने थे वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक? और यहाँ से स्टार्ट होती है मूवमेंट अगेन। देखेंगे इसके बारे में। तो दिस वाज द फिलोसॉफिकल बेस, तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। अभी देखो क्या क्या देखा है हमने। फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट एग्जैक्टली वाज संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। उसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। ओके, एंड देन वी हैव सीन द फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी क्या थी इसमें। इन तीन पार्ट्स को हमने इस लेक्चर में कवर किया। द अपकमिंग स्टेजेस, द अपकमिंग लेक्चर विल स्टार्ट विद द स्टेजेस। इसी संयुक्त महाराष्ट्र में कुछ स्टेजेस थे और ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ रही है। ओके, विल मूविंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट अगेन गाइस। ये पहला लेक्चर है जो वी हैव स्टार्टेड बाइलैंग्वेज। ओके, अभी आपका काम है कि आप मुझे बताओ, शैल वी कंटिन्यू विद दिस बाइलैंग्वेज थिंग। जम रहा है क्या, समझ में आ रहा है, ये जंबल हो रहा है दिमाग में आपको। ओके, इफ यू गाइस से कि बाइलैंग्वेज कंटिन्यू करना है, सो विल कंटिन्यू विद दिस, एंड इफ यू गाइस से कि पहले वाला इंग्लिश ही बेटर है, ओके, देन विल गो विद दैट। इट्स अप टू यू, प्लीज कमेंट एंड टेल मी। ओके, मुझे बताओ कौन सा अप्रोच हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, सो लेट्स सी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। इफ you need to share anything or any feedback in the context of this particular session, voice का जो issue आ रहा था अब तक, अगर वो सॉल्व हो गया है, just let me know. Okay, so we'll stop this particular session. I hope you enjoyed this. Chalo, have a good day.